अस्सलाम वालेकुम। द नॉर्थ पल्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और आपको खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं अयूब वली साहब और ऑनलाइन हमें ज्वाइन करेंगे हामिद अकबर साहब। आज हमारा टॉपिक इमिग्रेशन। जैसे कि आपको पता है कि इमिग्रेशन की पॉलिसी चेंज हो रही है। ट्रूडो ने लास्ट वीक एक रिकॉर्डिंग की 6 मिनट्स लॉन्ग अपने ऑफिस में बैठ के या अपने घर में बैठ के, तो बड़ा उसका चर्चा है कि लेदर सोफे पे बैठ के वो रिकॉर्डिंग हुई है। लेकिन और उसमें उन्होंने सारा पर्सपेक्टिव जो इमिग्रेशन का है वो उसमें हाईलाइट किया है। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ तक सही है और जो बातें की गई वो सही हैं कि नहीं, और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो अपने प्रोग्राम के शुरू में हम वही रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी सी दिखाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं कन्वर्सेशन। Immigration. Let's talk about it. In the last 2 years, our population has grown really fast, like baby boom fast. And increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. We avoided the worst case scenario, a recession. But some saw that as an opportunity to profit, to game the system. We've seen way too many large corporations doing this. The government says the program has been used to get around hiring Canadian workers in some instances. Far too many colleges and universities used international students to raise their bottom line. There are the diploma equivalent of puppy mills that are just churning out diplomas. There is fraud and abuse, and it needs to end. Because they could charge these students tens of thousands of dollars more for the same degree. And then there are really bad actors who outright exploit people, who target vulnerable immigrants with promises of jobs, diplomas, and easy pathways to citizenship, promises that would never come true. Looking back, when the post-pandemic boom cooled and businesses no longer needed the additional labor help, as a federal team, we could have acted quicker and turned off the taps faster. Now, it is time to make the adjustments to stabilize the immigration system that we need and get it working right for Canadians for right now. Immigration is primarily a federal job. We have the levers to rein it in, so we are. This is a big change, a major cut to immigration, reducing permanent immigration levels by at least 20%. A new string of measures to clamp down on temporary immigrants. That means a decrease in international students, temporary foreign workers. Canada's new immigration plan is straightforward. Lower the number of new immigrants coming into Canada, both temporary and permanent. We're prioritizing permanent residents with the skills we need, like healthcare workers for our hospitals and construction workers who will build more homes. And those temporary residents who are already in Canada, some will apply to stay in Canada as permanent residents. Since they're already here, established and working, the added pressure put on communities is very low. Or they'll leave Canada when their temporary residency expires, reducing our population. Some temporary residents may turn to our asylum system when their visa expires as a shortcut to stay in Canada. Those claims will be analyzed and processed, and if their claim fails, they'll be sent home. Between the amount of people coming and going, we'll effectively pause population growth for the next 2 years. Then from 2027 onwards, it'll balance out and slowly start increasing again at a sustainable pace. In fact, that gets us back to the population growth path we were on before the pandemic. This pause is going to give our economy and our communities the chance to catch up with things like our plan to build millions more homes. That's not stopping, but now we'll have a little more breathing room as we build. We'll see more corporations investing in Canadian workers and youth rather than relying on cheap foreign labor. Our cap on international students is already bringing rental prices down in big cities, and as we keep that cap in place, rents will keep coming down. We're making the system work for Canadians and for newcomers, rather than for the big box stores, chain restaurants, immigration consultants, and sham colleges that exploit it. Immigration is a great thing, and we're lucky that so many people dream of coming to our country. Fulfilling that dream depends on having a good job, a decent place to live, and health care that you can access when you need it. We have to make sure our population isn't getting out ahead of those things. जी,
तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, अभी हम उसी की डिस्कशन करते हैं कि इमिग्रेशन के जो उसमें बताया गया है कि 2 तरह के, एक परमानेंट इमिग्रेशन होती है, एक टेम्परेरी इमिग्रेशन होती है। टेम्परेरी इमिग्रेशन वो बता तो रहे हैं, लेकिन हमारे तो ज़हन में कभी नहीं आया कि कोई टेम्परेरी इमिग्रेशन होती है। तो लेट्स सी व्हाट आवर एक्सपर्ट्स थिंक अबाउट इट। तो आप अयूब वली साहब, आपसे शुरू करती हूँ कि आप बताएं कि ये क्या वो कह रहे हैं और क्या हो रहा है इमिग्रेशन डायमेंशन में। मैं जरा पीछे से बात करूंगा। 1997 में मैंने इमिग्रेशन अप्लाई की अच्छा। और उस जमाने में कैटेगरीज होती थी, इंजीनियरिंग कैटेगरी या जी। स्किल्ड वर्कर कैटेगरी या इन्वेस्टर्स कैटेगरी, जो अभी कुछ है, लेकिन इंजीनियरिंग कैटेगरी उन्होंने बंद कर दी है। ओह अच्छा। तो मैंने इंजीनियरिंग कैटेगरी में अप्लाई किया था बिकॉज आई एम एन इंजीनियर। जी। तो यहाँ एक होती थी कैनेडियन काउंसिल फॉर प्रोफेशनल इंजीनियर्स, CCPA। अच्छा। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो फौरन आपको एक सवाल आता है कि भाई आप अपना, जब से आप इंजीनियर बने हैं और अब तक जो है, आप अपना CV CCPA को भेज देते हैं, वेदर यू आर क्वालिफाइड एज एन इंजीनियर इन कनाडा और नो। जी। मैंने वो भेज दिया। चूंकि मैं सऊदी अरब में था तो मैंने लंदन में अप्लाई किया था, तो मैंने वो वहां से भेज दिया। अब वो नॉर्मली सऊदी अरब में ये होता है कि एवरी थर्सडे फ्राइडे फैमिली गैदरिंग होती है, तो सब आ रहे थे। जी। तो वो सब एवरी वीक मेरी वाइफ से पूछते थे कि क्या हुआ, अयूब भाई का कोई जवाब आया? तो भाई नहीं आया, नहीं आया। तो दोस्त कहते थे भाई 4 हफ्ते में आ जाता है। तो अच्छा। 4 हफ्ते में नहीं आया, 5 हफ्ते में नहीं आया। तो 6 हफ्ते के बाद मेरी वाइफ ने कहा कि भाई आप कुछ अपना बनाकर भेजते CV। मैंने कहा जैसा था वैसे भेज दिया। एनीवे मुझे वो आ गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, और उन्होंने रिग्रेट किया कि हमारी CCPA की मंथली मीटिंग नहीं हुई थी, इसलिए लेट हो गया। अच्छा। तो मैं इंजीनियरिंग कैटेगरी में सिलेक्ट हो गया और जी। उसके बाद मेरा इमिग्रेशन वीजा, मतलब मैं कहता हूँ 7th मंथ में मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए थे। अच्छा। तो ये इतनी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि कोई टेम्परेरी इमिग्रेशन, परमानेंट इमिग्रेशन की टर्मिनोलॉजी नहीं थी। जी। इमिग्रेशन मीन्स इमिग्रेशन। सही। और आज भी मैं ये कहता हूं कि जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, तो ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि ये परमानेंट इमिग्रेशन है और ये टेम्परेरी इमिग्रेशन है। मैं एक सवाल करता हूं प्रेजेंट गवर्नमेंट से, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू देम, कि टेम्परेरी इमिग्रेशन पे जो बंदा या बंदी आएगी और यहाँ तालीम हासिल करेगी और यहाँ की ग्रेजुएट हो जाएगी और फिर यहाँ जॉब करने लगेगी, वो वापस जाएगी या वापस जाएगा? नेवर। सही बात है। चलें इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि जो बंदा आता है वो वापस नहीं जाता, यही पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। जैसे कि ये जो इनका मिनिस्टर है इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप, मार्को मेंडिसिनो, उन्होंने बकायदा अपने मैसेज में ये कहा हुआ है कि वी डोंट जस्ट वांट यू टू स्टडी हियर, वी वांट यू टू स्टे हियर। दैट्स इट। कि हम ये नहीं कहते कि आओ आके पढ़ो और वापस चले जाओ। हम ये कहते हैं कि आप आओ, पढ़ो और फिर यहीं के रेजिडेंट हो जाओ। तो ये एक 2 स्टेप पॉलिसी थी इमिग्रेशन करने की। तो ये तो इसलिए इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये टेम्परेरी वर्कर्स हैं और ये मोस्टली वापस चले जाते हैं। ये मोस्टली यहाँ रुकते हैं, कोई होता है जो वापस जाता है। लेट्स चेक विद द लिबरल्स व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट। हामिद अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। आप थोड़ा सा बताएं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों वो इस तरह से मिसगाइड सा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो आपके ज़हन में क्या है? मेरे ध्यान में ये है कि हमारी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है ना, वो बिल्कुल क्लियर कट है कि हमें इतने बंदे चाहिए होते हैं हर साल, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज नहीं करती है। हमारी जो पॉपुलेशन है, जो लोकल कैनेडियंस हैं, उनकी औलादें जो होती हैं 2 या 3 होती हैं, और उसको रिप्लेस करने के लिए यू नीड 2.5 a kid टू रिप्लेस द पेरेंट्स। तो इस वजह से ये
आपकी इमिग्रेशन पॉलिसी, और उसमें जैसा अय्यूब साहब ने कहा कि हमें चाहिए इस वक्त ट्रेड्समैन, जैसे कारपेंटर हुए या मेसनरी हुए, इन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है कंपेयर टू इंजीनियर और डॉक्टर्स और इन लोगों की। तो उस वजह से हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी जो है 1993 से काफ़ी हट गई है। आपको याद होगा 1993 में हमारी जो वो थी इमिग्रेशन पॉलिसी, वो थी 250,000 मैक्सिमम। और जब जाकर चेंग वो थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो मैक्सिमम वो इनवाइट करते थे 230,000 इमिग्रेंट फॉर द ईयर, एवरी ईयर। सो आप हिसाब लगा ले। और दूसरी वजह इसकी ये इमिग्रेशन की ये भी है कि वो आकर काम करेंगे तो आपका जो CPP है, कैनेडा पेंशन प्लान, वो भी आपका चलता रहेगा। उसकी वजह से जब आप लोग रिटायर होंगे, मैं तो खैर रिटायर हो गया हूँ, आप लोग जब रिटायर होंगे तो CPP की फंडिंग कौन करेगा? जैसे हमारी CPP की फंडिंग आप लोग करते हैं, जी जी ठीक है ना? जी इस वजह से हमें इमिग्रेशन की बहुत जरूरत है। जहाँ तक वो 2-tier पॉलिसी है, ये 2-tier पॉलिसी पहले नहीं होती थी। ये 2-tier पॉलिसी इस वक्त लेकर के आए हैं इमिग्रेंट को खुश करने के लिए, और खास तौर पे देयर स्पेसिफिक कम्युनिटी। उसमें ये हुआ है कि मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता हूँ अपने लिबरल्स को इस मामले में कि इमिग्रेंट को अलग रखें और स्टूडेंट और जो टेम्पररी वर्कर हैं उनको अलग रखें। जी असाइलम सीकर की अलग रखें, क्योंकि असाइलम सीकर जो होते हैं वो बेचारे कहीं के नहीं रहते हैं। तो इसलिए आपको असाइलम सीकर के बिल्कुल, और उनका जो कैटेगरी होती है वो गवर्नमेंट जो है एक साथ का खर्चा इनका इंतजाम करती है, ठीक है जी ना? आपको घर देगी, आपको खाना पीना देगी, आपको वो भी पैसा देगी। लोग कहते हैं कि ये रेफ्यूजी ज्यादा अच्छे हैं कैनेडियन से, लेकिन यहाँ अच्छे हैं लेकिन एक साथ साथ, उसके बाद दे आर ऑन देयर ओन, ठीक है? तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि इमिग्रेशन जो है कनाडा के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हाँ, जो लास्ट फ्यू इयर्स में जो इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं और दूसरे वर्कर्स जो आ गए हैं, उस वजह से एकदम से एक्सप्लोजन हो गया है कनाडा में। उसकी वजह से जो लोकल कैनेडियन थे उनको जॉब मिलने में मुश्किल हो रही है। और जी खासतौर पे आपने देखा कोविड के बाद जो है वो जॉब जो है खत्म होनी शुरू हुई है, और आप देखेंगे ऑफिस बिल्डिंग जो है काफी एम्प्टी होनी शुरू हुई डाउनटाउन में भी और मिसिसागा में भी। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, 1996 में मैं जब कनाडा मिसिसागा आया था, जी मूव किया टोरंटो से, तो उस वक्त मिसिसागा की पॉपुलेशन थी 396,000। इस वक्त पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 1 मिलियन। तो या आप देख लें कि 3 टाइम्स इंक्रीज की है पॉपुलेशन, और उसकी वजह से मिसिसागा की जो वो प्रॉस्पेरिटी है वो काफी बढ़ी, बल्कि मिसिसागा की नहीं बल्कि सदर्न ओंटारियो की भी। आप चले जाएं सेंट कैथरीन में, वहाँ भी आपको मकान अच्छा खासे महंगे मिलेंगे। आप चले बेरी में चले जाएं तो वहाँ भी महंगे मिलेंगे। मिसिसागा में तो अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई है। तो जी इस वजह से इमिग्रेशन का आना जो है, इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो बहुत जरूरी है। हाँ, मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट वीजा पे और जो दूसरे टेम्पररी वर्कर जो आते हैं उनको एज ए टेम्पररी रखें। जिस स्टूडेंट वीजा के आपको ट्रेड्स में जरूरत है उनको आप इमिग्रेशन दें, और जिसकी जरूरत नहीं है, अगर कोई वो डॉक्टर इंजीनियर बन के आता है, हमें इंजीनियर की जरूरत है, या अकाउंटेंट बन के आता है, हमें जरूरत नहीं है, तो why should we give him to immigration? जी नहीं, ये आपकी बात तो सही है। स्टूडेंट वीजा तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट, एक क्वालिफाइड वर्जन होता है एक स्टूडेंट का, कि एक बंदा हम्म, आया है क्वालिफिकेशन के साथ आया है, आके यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एजुकेशन लेगा तो वो ज्यादा अच्छा सिटीजन साबित हो सकता है। अभी हमने जैसे देखा कि इवन US में ट्रम्प भी कह रहा है कि जो जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको बेशक ग्रीन कार्ड दे दो, क्योंकि वो तो प्रोडक्टिव सिटीजन है ना, या बन सकते हैं प्रोडक्टिव सिटीजन किसी भी कंट्री के। लेकिन ये जो अदरवाइज इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आप सपोर्ट ना करें। लेकिन यहाँ पे अब स्टूडेंट वीजा कम, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जब पॉलिसीज बनाते हैं, मेरा ये कंसर्न है बेसिकली कि ये लोग जब हम्म, पॉलिसीज बनाते हैं तो ये क्या डेटा नहीं देखते, ये इनके पास एक्सपर्ट्स नहीं है जो इनको गाइड करें। पॉलिसी कैसे गलत हो जाती है? अगर इनकी ये ये पॉलिसी थी कि स्टूडेंट्स लाना है तो एकदम से इतना ज्यादा स्टूडेंट कहाँ से आ गया?
कि कोनिस्टोगा कॉलेज जो है उसके 37,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उनके पास। कैन यू इमेजिन? और अभी आप कट कर रहे हैं। अभी उसकी वजह से, कट की वजह से क्या हो रहा है, सैनिका को अपने बहुत सारे, सैनिका कॉलेज उसको अपना मार्खम कैंपस पूरे का पूरा क्लोज करना पड़ रहा है। शेरिडन कॉलेज अपने 43 प्रोग्राम्स क्लोज कर रहा है। एकदम से जो इतनी वो वेव चली है, एक ड्रास्टिक चेंज आई है पॉलिसी में। तो ये ड्रास्टिक चेंज, डू यू थिंक इट विल वर्क इन द फ्यूचर, या हम ये दोबारा एक और ड्रास्टिक चेंज लानी पड़ेगी? व्हाई दे डोंट हैव सस्टेनेबल स्मूथ पॉलिसीज? ये अच्छा, जी आप ही चलें, आप ही मैं हामिद जवाब अकबर साहब, देता आप हूँ कि कंटिन्यू करें। हम इमिग्रेशन सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है, उनके पास पूरा डेटा होता है कि वो उनको किस कैटेगरी में इमिग्रेंट चाहिए। जी वो पास कर देते हैं गवर्नमेंट, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को, कि हमें इतने बंदे इस कैटेगरी में चाहिए, इतने बंदे इस कैटेगरी में, इतने बंदे इस कैटेगरी में जी चाहिए। बिल्कुल सही बात ठीक है ना? जी। उसको देख करके फिर जो है वो गवर्नमेंट जो है इमिग्रेशन पॉलिसी बनाती है। हुआ यहाँ पे ये है कि हम कुछ लॉबियस्ट ऐसे आ गए थे गवर्नमेंट में, जिन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी को साइड में करके स्टूडेंट और टेम्पररी वर्कर्स को प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी। उसकी वजह से जो आपका जो जो इकोनॉमिक वो था, वो इकोनॉमिक बेनिफिट वो 100% पे नहीं था। अब जो स्टूडेंट आएगा, जाहिर है कि कोई जहाँ से भी आ रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहा है या सेकंड वर्ल्ड कंट्री से आ रहा है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं होते हैं कि वो हर चीज बर्दाश्त कर सके। लेकिन अब वो देखे ना, फूड बैंक में कौन जा रहा है आजकल दिस? जी अगर आप फूड सही बैंक बात के है। देखें ना, पार्ट ऑफ तो दीज स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डेफिनेटली। स्टूडेंट, या तो उस चीज को इन लोगों ने देखा नहीं। ये हमारी गवर्नमेंट की दूरंदेशी की नाकामी है। जो गलत बात है वो गलत है, मैं उसको क्रिटिसाइज आई करूंगा। रियली लेकिन अप्रिशिएट हामिद अकबर साहब कि आप अपनी ही जो जिसको आप सपोर्ट करते हैं उसकी खामियों को एक्सेप्ट करने में आप देर नहीं लगाते। और जो आपने सही बात कही कि ये जो फूड बैंक के बाहर लाने हैं उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शामिल हैं। अभी ये रीसेंट न्यूज़ है कि ब्रैम्पटन में ब्रेक इन जो कार्स के इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें 3 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं। अभी शुक्र है उन्होंने ये नहीं बताया कौन से कॉलेज, कल को ये खबर भी सामने आ जाएगी कौन से कॉलेज के वो स्टूडेंट्स थे। तो जाहिर सी बात है ये जितना फसाद हो रहा है, जो हाउसिंग क्राइसिस है, जो जॉब का क्राइसिस है, वो भी अपनी जगह पे है, और साथ में ये जो लॉलेसनेस है एक लिहाज से, उसमें भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रोल है, या इंटरनेशनल टेम्परेरी वर्कर्स का रोल है। आई वुड से दैट। आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि अगर ये दूसरी पार्टी होती, कंजर्वेटिव्स होते, तो उनसे ये गलती क्या ना होती? और क्या जब वो अभी अगर वो वापस आ जाते हैं, लेट्स दैट्स व्हाट दे आर होपिंग, तो क्या उनके पास कौन सी ऐसी मैजिक वांड होगी जिससे वो इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? देखें, मुझे आई अप्रिशिएट कि हामिद साहब ने एक चीज एडमिट की कि जो लोग हमें चाहिए वो नहीं बुला रहे, हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए। जी भाई, आप फ्रेमवर्क, वुडन फ्रेमवर्क से हमारा घर बनता है ना, जी वो बुलाएं। इलेक्ट्रिशियन बुलाएं, इलेक्ट्रिशियन आपको नहीं मिलता। सही बात है। आपके पास फ्रेमर नहीं है, आपके पास ड्राइवॉल का एक्सपर्ट नहीं है। आप इन स्किल्ड वर्कर्स को बुलाएं, आप उनको इमिग्रेशन दें, जी तो वो डायरेक्ट जॉब मार्केट में इन्वॉल्व हो जाएंगे और कोई बेकारी नहीं होगी, और इनको गाड़ियां चुराने की और घर फाड़ने की जरूरत नहीं होगी। मेरे घर में ब्रेक इन हुई 1 महीने पहले। लेकिन अगला सवाल भी बहुत बड़ा है जो कि शायद हमारा प्रोग्राम में हम उसको जवाब ना दे सकें, लेकिन अभी जो कॉलेजेस हैं जैसे कि वो सारे क्लोज हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस कॉलेजेस पे आ गया। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो $3.1 बिलियन रेवेन्यू का लॉस है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो वो कौन कवर करेगा? गवर्नमेंट कैसे देगी? गवर्नमेंट के पास तो इसी वजह से तो पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे रिलायंस थी इतनी ज्यादा कि वहां से क्योंकि गवर्नमेंट इतनी ज्यादा फंडिंग नहीं देती एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, तो इस वजह से वो रिलाई कर रहे थे इंटरनेशनल
स्टूडेंट्स पे, क्योंकि ज्यादा पैसे वहां से मिलते थे। तो अभी इसका क्या होगा, ये एक बड़ा मसला है। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा दूसरा साइड भी देखना चाहूंगी कि असाइलम सीकर्स फॉर एग्जांपल, वो भी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी उस पे भी कट लगा है कि असाइलम सीकर्स भी नहीं लेंगे और कम लेंगे। अभी खबर है कि सिर्फ अफगानिस्तान से और यूक्रेन से लिए जाएंगे, बाकी मुल्कों से असाइलम सीकर्स अगर कोई अप्लाई भी करता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये जो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये तो एक लिहाज से कंपैशनेट जो ग्राउंड्स थे गवर्नमेंट के, वो भी वो लूज कर रही है। तो इसके बारे में तो इसका कुछ जवाब जी, आप मैं हामिद जवाब अकबर दूं। साहब, आप प्लीज। कनाडा ने यूनाइटेड नेशन के साथ एग्रीमेंट किए, असाइलम सीकर को वो असाइलम देगा, मस्ट है। अच्छा, कितने देगा ये नंबर की डिटर्मिनेशन नहीं की है। अब जी थर्ड वर्ल्ड कंट्री या वॉर टॉर्न कंट्री से जो लोग आते हैं उनके जी पास तो कुछ भी नहीं होता है, जाहिर है वो लुटे लुटाए आते हैं और दे वांट द पीस और समथिंग। जी उस वजह से कनाडा के जो वो असाइलम पॉलिसी है वो ये है कि आप मेन एंट्री पोर्ट से आए। आप ये जो यूएस से दाखिल हो जाते हैं या जी कहीं और से दाखिल, ओनली वन बॉर्डर यूएस से, तो वो जो है अग्री नहीं है। आपको आना है मेन, सी पोर्ट से आ जाए या एयरपोर्ट से आ जाए, इन दो जगह से आ सकते हैं। हुआ ये है लास्ट फ्यू इयर्स में कोविड के बाद से कि जो असाइलम सीकर जो थे वो उन्होंने क्रॉस करना शुरू कर दिया मैनिटोबा से, सस्कैचुअन से और नॉर्दर्न इंटीरियर से। उसकी वजह से अब वो ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी आ गई वहाँ पे, एज अ ह्यूमैनिटेरियन कैनेडा बीइंग अ चैंपियन ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उन्होंने इसको ले लिया। उसकी वजह से लोग दूसरों ने देखा कि अरे यहाँ तो बॉर्डर खुला हुआ है, हम भी चलते हैं। तो जी, ये वो एक तरह जाहिर का है। ना जी चेन बन गई। देखें, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं होगा। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आप करेंगे तो बिल्कुल ही आपकी जो पॉलिसी है धड़ाम से गिर जाएगी। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में जैसा ये साहब ने कहा कि हमें स्किल वर्कर, अगर इसमें साइलम सीकर में भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, अगर इनमें क्वालिफाइड जो कि ट्रेड्समैन हैं उनमें से जिनको अगर आप जॉब दे सकते हैं तो जॉब दें। और दूसरा जो स्टूडेंट का हुआ है, पहले क्या होता था कि आप सर्टेन नंबर्स ऑफ आवर्स जो है स्टूडेंट को अलाउ करते थे कि आप कर लें लीगली। अब जी ये जी है कि मुझे ये नहीं मालूम कि कितने आवर्स अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे इसका नहीं है। तो जी ऐसी पॉलिसी लेके आए कि 20 घंटे या 25 घंटे आप हफ्ते के कर ले तो उनका अपना खर्चा निकल आएगा लीगली। नहीं जी मानते ना। नहीं, और दूसरी बात ये है कि 20 इसलिए, आवर्स 20 आवर्स दिए हुए हैं, लेकिन फिर वो वो उससे क्या ज्यादा। करते ठीक हैं है। 20 जी आवर्स के बाद वो अपने एम्प्लॉयर से कहते हैं कि मैं कैश पे काम करूंगा। जी एम्प्लॉयर को नॉर्मली $17 देने पड़ते हैं। वो उससे पूछता है $10 लोगे? मैं अपने आंखों से देखी बात करता हूँ, ठीक है? तो वो कहता है हाँ जी, बाकी के 20 घंटे तो मैं $17 लूंगा, बाकी के 20 घंटे में $10 लूंगा, लेकिन 2 घंटे अभी करूंगा तो आप $20 दे दें। ये चल रहा है मार्केट में। जी आप डेफिनेटली दैट्स आप हाउ इट आप आप जी। पान वाले की दुकान पे चले जाएं, आप ग्रोसरी की दुकान पे चले जाएं। और यहाँ पान वाली दुकानें हैं। हाँ, ओके आप यहाँ से हट गए हैं इमिग्रेशन से, ये आ गए हैं अंडरग्राउंड इकोनॉमी पे। जी नहीं अंडरग्राउंड, लेकिन इट्स ऑल कनेक्टेड, नहीं है, बात ये इट्स है, ऑल कनेक्टेड कि जब बात भी ये है, आपने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात की, तो एक कनाडा एक फलाही मुमलिकत है, बेशक बेशक, लेकिन एक्सप्लॉइट ना करें। आपके घर में खाने को नहीं है, आपके अपने बच्चों को जो आपके सिटीजन हैं, जो आपके परमानेंट रेजिडेंट हैं, और आप दुनिया को, फलस्तीन को, यूक्रेनियन को, सीरियंस को आप बुलाते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और 25-25 हजार का चेक देते हैं। आई एम विटनेस। तो कैसे चलेगा भाई? चैरिटी बिगिंस एट होम। ये पॉलिसीज कहाँ गई? ये कनाडा की पॉलिसी है। ये जी असाइलम सीकर जो है कनाडा की पॉलिसी ये है कि दे केटर फॉर 1 ईयर, क्योंकि उनको एक तो जॉब नहीं मिलती है, दूसरी जबान का प्रॉब्लम होता है, तीसरा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है।
तो इन लोग के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने सिर्फ 1 साल तक का रखा है कि 1 साल तक प्रोवाइड यू बोर्ड एंड लॉजिंग, उसके बाद यूर ऑन योर ओन। तो उसके बाद जो लोग है ना वो फिर वो कुछ लोग जो हैं ब्रेक इन में चले जाते हैं और गलत उसमें चले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक ये है कि हमारे कैनेडियन सिटीजन उनके पास ऑप्शन हैं, उनके पास कई ऑप्शन है। बल्कि हमारे मैं एज ए CRA में देख चुका हूँ कि अगर आपकी इनकम लो है और अभी आप रिटायर्ड नहीं हुए हैं तो आप सोशल असिस्टेंट पे जा सकते हैं। आप गवर्नमेंट से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मेरी इनकम इतनी कम है, आप इसमें कुछ GST HST में जो होता है वो बढ़ाते हैं। और दूसरी चीज़ें आपको इनकम टैक्स में भी रिलीफ मिल जाता है क्योंकि आपकी इनकम कम होती है और आपके एग्जेम्पशन ज़्यादा होते हैं तो उसमें आपको रिलीफ मिलता है। हाँ, गवर्नमेंट जो है आपको वो पैसे कैश नहीं देगी कि हाँ ये है कि ये लो $10,000 और जाकर के खर्च कर लो। गवर्नमेंट ये नेवर डू दैट। ये सिर्फ पॉलिटिकल असाइलम नहीं, जो असाइलम सीकर जो होते हैं, जो वॉर टोन कंट्री से आते हैं, सिर्फ उनके लिए है और वो भी 1 ईयर के लिए। जहाँ तक सीनियर का ताल्लुक है, बहुत से लोग कहते हैं कि सीनियर जो है वो हैंड टू माउथ है। या सीनियर का हैंड टू माउथ है, लेकिन उनके पास ऑप्शन ये है कि वो उनको CPP मिलता है, उनको ओल्ड एज मिलता है। अगर उनकी इनकम कम है तो गारंटीड इनकम सप्लीमेंट मिलता है जो कि मिनिमम। हामिद साहब, ये पेपर पे बड़ी खूबसूरत बातें आपने बताई। सपोज मैं वन ऑफ द विक्टिम हूँ और मैं पेपर वर्क करूँ और मैं गवर्नमेंट को दूं तो 2 साल तक तो मेरा नंबर नहीं आएगा, तो वो 2 साल में हवा खाऊंगा। चलें जी, कोई नहीं, ये कन्वर्सेशन तो जारी रहेगी। अभी हम थोड़ा सा इसमें ये भी देखते हैं कि ये जो इमिग्रेशन के इशू को लेके आप एक दफा और एक प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि ट्रम्प जो है वो कह रहा है कि 25% टैरिफ लगाएगा। और उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं, ड्रग्स लेके जाते हैं, इन सारे चीज़ों को लेके वो 25% तक टैरिफ लगाएगा इफ़ वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर बॉर्डर्स। और उसके जवाब में ट्रूडो साहब गए हुए थे अपने बॉस से मिलने, ट्रम्प से मिलने, और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस तरह तो हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल में हम होंगे। तो ट्रम्प ने मजाक में यहाँ तक कह दिया कि अच्छा, अगर तुम लोग हमारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते या इस तरह सरवाइव नहीं कर सकते तो फिर हो सकता है कि तुम लोग लाइक कनाडा जो है वो 51st स्टेट बन जाए US की। तो उसकी जो वीडियो है वो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद ब्रेक पे चलते हैं। जब वापस आएंगे तो कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। Speaker, whether one thinks that President Trump's tariff threats are a negotiating tactic or a real plan, what we do know is what we can control. And the Prime Minister has lost control of everything. He's lost control of the borders, lost control of immigration, lost control of spending and the deficit, lost control of inflation and housing costs, lost control of his own caucus. This has put Canada in an unbearably weak position. Mr. Speaker, will the Prime Minister reverse all the damage he's done, or will he just call a carbon tax election so we can do it for him? The Right Honourable Prime Minister. I think the Leader of the Opposition needs to reflect carefully on whether he really wants to amplify the erroneous narratives that the Americans are putting forward around, for example, our border, when less than 1% of migrants coming into the United States irregularly come from Canada, where 0.2% of fentanyl coming into the United States comes from Canada. These are things that we would all do well to stand up and say, yes, there's things we can and are working on together at our border, but amplifying these broken narratives is simply not responsible leadership. The Honourable Leader of the Opposition. Breaking things is not responsible, Mr. Speaker, and that's what he's been doing for 9 years. My job is not to cover that up for him. In fact, he's broken our economy. He's doubled the cost of housing, doubled the national debt, doubled trouble across our economy with higher taxes on working Canadians. He's in the process of raising taxes on investment and energy right now, while an American incoming president wants to take our jobs and our businesses. It's understandable why President Trump wants Canadian jobs to go south, but why does this Prime Minister want to help him do it?
Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, we recognize that Canadians are facing challenging moments, which is why we are stepping up to deliver for them, whether it's by delivering a tax break over the next few months that the Conservatives are totally opposed to, whether it's by delivering a national school food program that is already helping thousands of Canadians across the country that the Conservatives oppose, whether it's delivering dental care that's making a real difference in the lives of over 1 million Canadians that the Conservatives not just opposed but did everything they could do to scuttle. Mr. Speaker, the Conservative leader just wants to exploit the challenges Canadians are facing while we will solve them. That's right. The Honourable Leader of the Opposition. Speaker, he created all of those problems. And a food program that hasn't served a single meal, or a temporary tiny 10-cent tax cut on a bag of potato chips will not fix what he broke, especially considering that his next plan is to quadruple the carbon tax to 61 cents a litre. You can just picture President Trump calling our businesses, encouraging them to leave Canada and set up south of the border where there is no carbon tax and where other taxes are falling. Again, it's clear why the incoming American president wants to take our jobs. Why does this Prime Minister keep helping him do it? The Right Honourable Prime Minister. Let me say it once again, Mr. Speaker. The price on pollution puts more money back in the middle class's pockets across this country than it costs them. The Canada Carbon Rebate is a check that arrives 4 times a year and helps 8 out of 10 Canadians in jurisdictions where it arrives with more money than they pay on the price of pollution. It's how we fight climate change and build a strong economy for the future while putting money in the pockets of Canadians. That is what we are doing while the Conservative leader wants to abandon not just the environment, but the economy as well. That's right. HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Kalar Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क चाय थी। Thank you. 15 pieces and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का for Desi Bikers of Canada. Chai Social sponsor. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and equally we can count on you in the future.
अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। वेलकम बैक। तो अभी फिर थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कार्बन टैक्स इलेक्शंस का कंजर्वेटिव्स बहुत शोर मचा रहे हैं, उसका हमारे एक्सपर्ट्स का क्या ख्याल है कि होने चाहिए या कार्बन टैक्स नहीं तो अदरवाइज होने चाहिए? क्या ये राइट टाइम है इलेक्शंस का या हमें वेट करना चाहिए अक्टूबर तक? तो मैं चाहूंगी कि हमारे कंजर्वेटिव के जो मेंबर हैं अयूब साहब, वो इस पे रोशनी डालें कि लाजमी होने चाहिए क्या, या आप लोग वेट कर सकते हैं अक्टूबर तक? हम तो वेट करने के लिए तैयार हैं, जैसा लिबरल चाहे। अच्छा, हमने लिबरल को लिवरेज दिया हुआ है। अच्छा, इसलिए कि हम उनका बिल्कुल सफोकेट करना भी नहीं चाहते ना हर लिहाज से। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत वेट करने के लिए। आपका क्या ख्याल है हामिद अकबर साहब इसके बारे में कि क्या ये इलेक्शंस हो जाने चाहिए अभी, जैसे कि कंजर्वेटिव्स दे ऑलवेज पुट दैट फॉरवर्ड, एनडीपी ऑल्दो सपोर्ट नहीं कर रहा कार्बन टैक्स इलेक्शंस को या अभी इलेक्शंस को, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अभी जो रिसेंट पोल है वो कंजर्वेटिव के फेवर में है, लेकिन एज अ लिबरल और एज अ लिबरल पार्टी मेंबर आई कैन tell you that if the government is not defeated, the election will happen in October, at a fixed time. So ये है कि conservative have to wait till October. उसकी वजह ये है कि conservative is not able to unite all the parties to defeat liberals, and NDP, because of his trump card, they will not defeat because they will lose more seats in the next election. आपने नोवा स्कोशिया का इलेक्शन रिजल्ट देख लिया? या देख लिया। 2 सीटें मिली हैं लिबरल को। नोवा स्कोशिया का भी देख लिया, सी का भी देख लिया, और कंजर्वेटिव ने स्वीप किया है वहाँ। वो होता है, लेकिन ये है कि जब फेडरल की बात आती है, प्रोविंशियल और फेडरल की डिफरेंट हो जाती है बात। जब आप लीडरशिप अगर अच्छी हो ना तो आप स्वीप कर जाते हैं। 2015 में क्या हुआ था? 2015 में जब हार्पर की पॉपुलैरिटी कम हो गई थी तो जस्टिन ट्रूडो वाज अ न्यू किड इन टाउन, तो उसकी वजह से मोकलेर वाज गोइंग हाई, दे वर नंबर 2 पार्टी। लेकिन ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पॉलिसी ऐसी बनाई कि वो ही बिकम अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट इन 2015। ये 2015 आपने अच्छा याद कराया हामिद साहब कि 2015 में इन्होंने असाइलम सीकर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, या उनको लेके तो अपना एक कंपैशनेट इमेज दिया जिसपे लोगों ने बहुत ज्यादा इनको वोट दिए और ये मेजॉरिटी में आ गए। तो यही तो अब क्वेश्चन है कि अब जो है वो इनको वोटों की जरूरत नहीं है, या इस तरह से तो अब हर एक को पांव के नीचे रोंद रहे हैं, या सारी पॉलिसीज खराब हो रही हैं। तो ये डेफिनेटली, और आई एग्री विद यू ऑन वन पॉइंट कि ये जो कंजर्वेटिव्स हैं ये दे आर स्टैंडिंग अलोन। तो ये यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बाकी सारी पार्टीज इकट्ठी हैं, ये तो बिल्कुल इमरान खान वाली हालत है कि इमरान खान अकेला खड़ा है और बाकी सारी पार्टीज दूसरी तरफ हैं। अब कौन सा सच्चा है कौन सा नहीं ये पता नहीं। कनाडा में 4 पार्टियां हैं इस वक्त, ठीक है ना? लिबरल, कंजर्वेटिव, एनडीपी और ब्लॉक क्वेबेकवा। ब्लॉक क्वेबेकवा एक अपना एक मकाम रखती है। वो ब्लॉक क्वेबेकवा किसी तरफ भी जा सकती है, लिबरल भी जा सकती है और कंजर्वेटिव भी जा सकती है। अच्छा, ज्यादातर चांसेस ये होता है कि वो लिबरल की तरफ जाए ताकि के वो फ्रेंच जो वोटर्स हैं वो ब्लॉक क्वेबेकवा को मिल जाए जी। इस वजह से अच्छा, जहाँ तक पॉलिटिकल असाइलम का है
वो तो क्योंकि इलेक्शन ईयर होता है तो वो फोटो आपके लिए होता है, लेकिन वो जो असाइलम सीकर जो हैं वो अभी भी आएंगे कनाडा और इनको लिया जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से हमारा एग्रीमेंट है कि आपको सम अगर कोई कोटा है ना जो परसेंटेज जो लेनी होती है, लेकिन हम तो बहुत जेनरसली वेलकम करते रहे हैं ना बहुत ज्यादा। असाइलम सीकर्स को। हम तो उस कोटे से अबव एंड बियॉन्ड ही गए रहे हैं ना नहीं, थ्रूआउट। आई डोंट थिंक सो बियॉन्ड ओवर एंड बियॉन्ड किया है, लेकिन ये कि अगर आपके दरवाजे पे कोई आ गया है कि जी हमें चाहिए और ही इज रिलायबल, ही इज क्रेडिबल, तो आपको लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन एग्रीमेंट। सही। अच्छा जी, दूसरी न्यूज़ क्विकली कवर करते हैं हल्की सी कि यूएस जो अगेन दिस लुक्स लाइक अ पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ ऑपरेशंस इवन इन द यूएस के यूएस में अब आप देखें कि ट्रम्प चूंकि वो इलेक्ट हो गए हैं एज प्रेसिडेंट, तो इसलिए उनके जितने केसेस थे वो ऐसे लगता है जैसे माफ हो गए हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी सी ट्वीट आई उनकी तरफ से कि भाई देखो अब मैं फ्री हूँ और मेरे पे कोई केस नहीं है। और तो इसको आप कैसे देखते हैं कि नॉट गिल्टी वाला जो लेबल उन पे, या 100% इनोसेंट इन अदर वर्ड्स, वो बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रहे हैं अपनी। तो ये क्या रियल है, ये क्या वाकई पॉलिटिकल था, ये क्या कैसे आप कैसे देखते हैं अयूब साहब? देखिए ये पॉलिटिकल ही था जी। ट्रम्प का आप जो भी देख लें, ट्रम्प एक बिजनेसमैन था जी। ठीक है, उसने कोई बिजनेस के प्रॉब्लम्स किए होंगे एज ए कमर्शियल, वो अपनी जगह थी, लेकिन उसके लास्ट टर्म में उस पर कोई ऐसा चार्ज नहीं था। तो ये सिमिलर है कि इमरान खान पे कोई चार्ज नहीं था। अच्छा। ठीक है ना। अब 26 नवंबर का जो केस बना पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जी, तो उसके बाद इमरान खान पे फिर 5 मुकदमात आ गए पिंडी से। जी। तो उसको आप क्या कहेंगे? लेकिन हम यूएस की इकोनॉमी को या उसका जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो हम ज्यादा उसको मैच्योर समझते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसा नजर क्यों नहीं आ रहा कि एक शायद ये उनकी मैच्योरिटी है उनके पॉलिटिकल सिस्टम की, कि एक जो लाइक जिसके केसेस चल रहे हों कोर्ट में, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ सकता है और फिर उसमें जीत भी सकता है, और जीतने के बाद उसके सारे केसेस माफ भी हो जाते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज कोर्ट है। से आया ना जी, कोर्ट से ही आया, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ कोर्ट भी जो है वो खरीद ली गई है। अच्छा, हामिद साहब आपकी तरफ से कमेंट। ये कहना चाह रहा हूँ कि यूएस में अभी भी जस्टिस सिस्टम काफी लिबरल नहीं बल्कि ओपन है। वो ये नहीं देखती कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। कुछ जजेस ऐसे हैं जो करके वो अपना पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन दिखाते हैं कि मैं इससे हूँ, लेकिन जहाँ तक जस्टिस का मामला आता है तो वो जस्टिस देखते हैं, वही नहीं देखते हैं कौन सी देखना पॉलिटिकल चाहिए। पार्टी। सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जनवरी 6 का जो मामला था उसमें काफी लोग पकड़े गए और काफी लोग छूटे भी। तो ये इसमें मैं उनके कोर्ट को दाद देता हूँ कि वो काफी फेयर डिसीजन देते हैं। चलें, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया मेरे गेस्ट का कि ज्वाइन करने का, अयूब साहब आपका, हामिद अकबर साहब आपका। तो इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह और न्यूज़ को, करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ को लेके शामिल होंगे। अभी हो सकता है कि आपको लगे कि ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा लिटरेट नहीं है या इतना ज़्यादा इसमें कंटेंट और बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हर आने वाला शो पहले शो से ज़्यादा अच्छा हुआ करेगा। That's what I hope, and please pray for that, and thank you so much for joining.